Welcome to Pure Education. Let's continue with our discussion on previous year's questions of UPSC as well as BPSC of Science and Technology. You can follow us on Telegram and Facebook. So let's start with our first question. Project Loon, sometimes seen in news, is related to option 1 is waste management technology, wireless communication technology, solar power production technology, water conservation technology. So this Project Loon, that time was news when it came in the exam. It was in the news because this is a pet project of Google, and it is related to communication, where the Google is going to do is to provide wireless communication technology through helium filled balloons. And the helium filled balloons will be having solar panels fitted inside it, which will be, and this wireless communication, one balloon will be covering for approx 40 kilometer area, and this is basically for the rural and remote area as well. So for that, to provide wireless communication, a new technology that balloon helium filled balloon is was about to use. So that project was known as Project Loon. So now you can infer that our answer will be wireless communication technology, right? So let's go to our next question. With reference to Li-Fi recently in the news, which of the following statements are correct? You might be heard about Wi-Fi. Wi-Fi, you are very much familiar with it because we all use Wi-Fi. So the newer technology, the advanced technology for that matter, is Li-Fi, light fidelity. Why this Li-Fi? Because it uses see, first we'll see the answer, then only I am going to get you the details. Let's see our statement. It uses light as medium for high speed data transmission. See, that's quite normal, that Li-Fi, which means light fidelity, so it will be using light as a medium of high speed data transmission, right? So our first statement is obviously right. So the next statement is, it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. So if Wi-Fi was already there, then what is the need of bringing Li-Fi? This is obviously will be having some advantage, and that one of the advantage is faster than Wi-Fi. So what our answer will be? C, both 1 and 2. Let's see a bit of information about the Li-Fi. Li-Fi is a high speed internet connection technology, where it is using light as a medium, visible light as a medium, or near infrared spectrum even. What the speed of this is 10 gigabyte per second. Okay, so that is the speed it is giving, and it is what it is doing, it is transferring data through LED bulbs are there, and through that this data is transferred, and there is a photo detector which is going to detect it, and then that data is going to convert it into binary form, and which will be used further. So that much information is enough for Li-Fi. Now you understood what Li-Fi is. So the next, let's see our next question. What is Greased Lightning 10, that is GL10, recently in the news? This is about the current affairs about that time, but a bit of information, because this Greased Lightning 10 that time was in news due to some new technology. So you should know about the technologies. Okay, so what are the options here? Options are electric plane tested by NASA, solar powered two-seater aircraft designed by Japan, space observatory launched by China, reusable rocket designed by ISRO. What the answer is? The correct answer is electric plane tested by NASA. What NASA did, NASA tested a plane, Greased Lightning, that was having 10 engines. It was a battery powered plane which landed and take off like a helicopter, but it will fly like a aircraft. So that was something, a technology which was on news that time, and so the question is here. Okay, so now you have that idea of Greased Lightning, what it is. It is by NASA. Okay, so next
question. With reference to ASTROSAT, the astronomical observatory launched by India, which of the following statement is or are correct? Statement 1. Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. ASTROSAT is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 km above the surface of the Earth. Select the correct answer using the code given below. So let's see what ASTROSAT is here. ASTROSAT is, one second. ASTROSAT is astronomical observatory launched by India. So what here it is saying that other than US and Russia, India is the next country to launch them, but that is not right, because other than India, other than US and Russia, also Japan and Europe has also launched their astronomical observatory over there. Now the second, so first statement is wrong, right? So next statement, ASTROSAT is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 km above the surface. So 2000 kg is not there, it is 1513 kg. 1513 is the right weight over here. So this is also a wrong statement. Our answer will be D, neither 1 nor 2. ये जो एस्ट्रोसैट है ये इंडिया ने लॉन्च किया, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट? सो व्हाट इट इज़ बेसिकली, इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड इट कैन ऑब्जर्व यूनिवर्स इन ऑप्टिकल, यूवी, लो एंड हाई एनर्जी, even in X-ray or X-ray regions of the electromagnetic spectrum. It can observe the universe. Okay, so you got the answer here is D, neither of the statement is correct over here. So let's switch to next question. अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? It can use thorium in place of uranium for power generation. It can attain a global role in satellite navigation. It can drastically improve the efficiency of fusion reactors in power generation. It can build fusion reactors for power generation. So here, what is the thing? First see what is International Thermonuclear Experimental Reactor, then we are going to take out our answer. Okay, so this International Thermonuclear Experimental, it is a mega project which is approximately 34 nations are involved in this project. This is a project which is related to plasma physics. If this project is completed, so India, what India will be doing, it can build fusion reactors for power generation, because what is happening over here is they are trying to use plasma technology, plasma physics to and independent of this fuel what we are using in reactors. So they are trying to implement solar fuel for that, so that we can enhance the productivity of this nuclear reactors. Okay, so what our answer will be? D. Let's go to next question. Consider the following statements. The Mangalyaan launched by ISRO is called the Mars Orbiter mission, made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA, made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. Which of the statement given above is correct? So you all might be knowing about this MOM, right? Because we also have a movie on this. So मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान को भी हम मार्स ऑर्बिटर मिशन ही बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं. तो अब इसमें स्टेटमेंट, पहला तो स्टेटमेंट पता है कि हाँ ये तो सही है. दूसरा स्टेटमेंट, मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए, क्या ये सही है? सेकेंड कंट्री है? नहीं, सेकेंड कंट्री नहीं है. इससे पहले भी यूएस के अलावा रशिया और यूरोप, इन दोनों ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स में
भेजा हुआ है, इनका ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द मार्स। उसके अलावा जो तीसरा है, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, राइट। अब तीसरा स्टेटमेंट, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये तो हम सबको पता है कि सबसे पहले अटेम्प्ट में इंडिया ने ये इस मिशन को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए ये आंसर तो राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है। सो वन स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट, स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मार्स ऑर्बिटर, वैसे तो पता ही है काफ़ी लोगों को मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे, थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। इनका जो मेन स्कोप था या ऑब्जेक्टिव कह लो, वो था मार्शियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, उसके सरफेस को स्टडी करना, उसके मिनरलॉजी को स्टडी करना, ये सब उनके ऑब्जेक्टिव में था। जो ये मार्स और इसको जो लेके गए थे, जो एयरक्राफ्ट था, वो एयरक्राफ्ट कौन सा था? PSLV C-25 एयरक्राफ्ट था। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्री सतीश धवन सेंटर है, स्पेस सेंटर है जो श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से लॉन्च हुआ था। ओके, सो वी गॉट आवर आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the context of the developments in bioinformatics, the term transcriptome sometimes in the news refer to। देखो, ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? एक सेल होता है, ठीक है। सेल में क्या है? DNA है। DNA होता है न्यूक्लियस में इसके, है ना, जो हमारी हेरिडिटी के जो कैरेक्टर होता है उसको कंट्रोल करता है। DNA जो है, फिर उसके बाद DNA से रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होकर DNA बना। उसके बाद जो जीन है वो जीन ट्रांसक्राइब करके बनता है RNA, ठीक है। ये जो RNA है, जो ट्रांसक्रिप्ट करके RNA बना है, तो किसी भी एक सेल में जो कंप्लीट सेट ऑफ RNA है, वो RNA को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। कंप्लीट सेट ऑफ RNA, बिकॉज RNA बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ RNA होते हैं, सो टोटल सेट ऑफ RNA इज ट्रांसक्रिप्टोम। जैसे DNA सेट ऑफ DNA को हम जीनोम बोलते हैं, वैसे ही सेट ऑफ RNA को हम ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं किसी भी सेल में। तो इसलिए तो क्या है इसमें आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? अ रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, नहीं। The full range of mRNA molecules expressed by an organisms, right, this is what the right answer is कि mRNA molecule जो है, मैसेंजर RNA जिसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो एक्सप्रेस करता है, वो ही आपका ट्रांसक्रिप्टोम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। मिशन इंद्रधनुष जो है, ये क्या था? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, इंडियाज ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। इसमें क्या था? मिशन इंद्रधनुष में बेसिकली इट वाज फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो भी बहुत ही अपने इंडिया में क्या था, डेटा अगर तुम देखोगे बहुत ही लो परसेंटेज है ये वैक्सीनेशन का among to reach among children. So what they did, the government of India launched mission Indradhanush to cover all the non-vaccinated children and also partially vaccinated children and pregnant women for that, and they were and so they were vaccinated with the life-threatening disease which could be avoided. Okay, so the answer will be immunization of children, and it was, the red line was by 2020. They were about to cover non-vaccinated and partially vaccinated children and pregnant women. Okay, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, इसमें से अगर आप कुछ एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो उसमें टीबी आ जाता है, टीबी आता है, डिप्थीरिया आता है, पर्टोसिस आता है, टेटनस आता है। ये सारे डिजीज़ है जो हम अवॉइडेबल डिजीज़ है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulations 2011.
क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, FSSAI के जो रेगुलेशंस है उस रेगुलेशन के पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो रेगुलेशन है 2011 का पैकेजिंग एंड लेबलिंग का, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक मैन्युफैक्चरर को देना है अपने पैकेजिंग में। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशंस इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अब देखो, हम नॉर्मली जो पैकेट्स उठाते हैं अपने, कोई भी बिस्किट का पैकेट ले लो, कोई भी स्नैक्स का पैकेट ले लो, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखे रहता है, जो भी रेडी टू ईट वाली चीज़ें होती है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिलता है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है उसका भी साइन मिलता है। ये जो है ये मेडिकल प्रोफेशन से रिकमेंडेड नहीं, बट वैसे रिकमेंडेशन रहता है कुछ में। अगर कोई फिनाइल कीटोनिक्स है तो उसके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन रहते हैं दैट दे शुड नॉट ईट दिस because it contains this sort of ingredients. So for that reason this will not be included in our right statement. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट 1, 2 और 4 हो जाएगा, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा C, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन FSSAI का रेगुलेशन। तो जो न्यूज़ में अगर कभी ऐसा आता है या कोई चेंजेस करती है FSSAI अपने रेगुलेशन में, उसको आप एक बार ध्यान में रखते हो, उससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट। अब वायरस तो अभी वायरसेस ही बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए वायरसेस का क्वेश्चन है, ये BPSC में पूछा गया पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वायरस बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऑब्वियसली बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, फंगाई को भी इन्फेक्ट करता है और प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, सबको इन्फेक्ट कर सकता है, और इसलिए ये आंसर हो जाएगा D, 1, 2 एंड 3। आजकल ड्यू टू कोरोना वायरस हर कोई वायरस के बारे कुछ ज़्यादा ही जानता है, सो दे नो ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। Next question, cloves are obtained from which of the following part of the plant। क्लोव जो लौंग होती है वो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जो मतलब जो हम खाते हैं। ड्राइड लीव्स होता है, ड्राइड स्टेम्स होता है, ड्राइड सीड्स होता है, ड्राइड फ्लावर बड होता है। लौंग को कभी देखा होगा या क्लोव को, तो वो ऐसे इस टाइप का शेप का कुछ होता है, राइट। तो ये जो शेप है ये बेसिकली एक ड्राइड फ्लावर बड होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं अपने एज अ स्पाइसेस में, अपने फूड में। सो आवर आंसर विल बी D, क्लोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, टाइफॉइड। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कैंसर से, क्योंकि ऑन्कोजीन्स किनको बोला जाता है, ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं विच हैव द पोटेंशियल टू टर्न इनटू कैंसरस सेल्स। कैंसरस उस पर्टिकुलर सेल को कैंसरस बना सकते हैं ऑन्कोजीन में, अगर कोई एक पर्टिकुलर वहाँ पे जो जीन होता है उस जीन को अगर स्टॉप कर दे, अगर लेम लैंग्वेज में बोले तो उस जीन का फंक्शन अगर स्टॉप कर दे, तो ये जो जीन है वो ऑन्कोजीन जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता, कैंसरस सेल को कैंसरस बना देता है। तो इसलिए ऑन्कोजीन किससे रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। ये न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं बहुत बार, कैंसर से रिलेटेड। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। आयरन तो नहीं है, ये सब जानते हैं। उसके अलावा आप सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम में पोटेशियम है, क्योंकि आप पोटेशियम को जब पानी में डालते हो तो ये बर्न होने लगता है, रिएक्ट्स वेरी इजीली, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु सिंथेसाइज द DNA इन विट्रो। इन विट्रो DNA किसने सिंथेसाइज किया था, इन विट्रो इज इन लैब, लैब में DNA किसने सिंथेसाइज किया था। तो ऑप्शन क्या है, आर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जीनर, जोसेफ लिस्टर। रॉबर्ट हुक का नाम भी सुना होगा, फॉर रिलेटेड टू सेल। एडवर्ड जीनर है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। जोसेफ लिस्टर है जो लिस्टेरिया डिजीज होती है उससे रिलेटेड।
तो अगर वैसे नाम नहीं पता है तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप कॉर्नबर्ग में ही पहुंचोगे, और अगर पता है कि सिंथेसाइज किसने किया था इन विट्रो, तो वो है आर्थर कॉर्नबर्ग ने सिंथेसाइज किया था डीएनए इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the fissionable material used in the bombs dropped at Nagasaki in the year 1945? 1945 में जो नागासाकी में जो बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएस ने, जो वन ऑफ द हिस्ट्री का बहुत ही डिजास्टरस इवेंट था, उसमें क्या यूज़ किया था उन्होंने? वो बॉम्ब में प्लूटोनियम यूज़ हुआ था। प्लूटोनियम बहुत ज़्यादा ही लेवल पे हार्मफुल हो सकता है, ये बहुत ही फिशनेबल मटेरियल होता है जो बॉम्ब वगैरह में यूज़ किया जाता है, और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने का पार होता है। सो दे यूज दिस एज अ फिशनेबल मटेरियल इन द बॉम्ब, और दैट वाज अ वेरी बिग हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। इसमें से जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया था वो है कोपरनिकस। इन्होंने ही फर्स्ट ये बताया था कि जो अर्थ है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। So option C is the correct answer. Next question, cosmic rays are charged particles, uncharged particles, can be charged as well as uncharged, none of the above. cosmic rays क्या है? cosmic rays जो है वो, इसमें तो ऑप्शन क्या क्या, इसमें तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? सी, कैन बी चार्ज्ड एज वेल एज अनचार्ज। अब क्या है, कॉस्मिक रेज क्या होते हैं? कॉस्मिक रेज जो है दे आर प्राइमरी रेज, जो हाई एनर्जी स्टोरेज होता है, मेनली किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस से बना होता है, और इसलिए ये चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हमारा आंसर क्या हो गया? इससे सी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following element is found in all organic compounds? जो अगर कभी भी ऐसा होता है कि टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है ना, तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखो, कार्बन। कार्बन, जहाँ कार्बन आ गया वो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाती है। तो ऑर्गेनिक मतलब उसमें ऑलवेज देयर विल बी द एलिमेंट विच विल बी प्रेजेंट विल बी कार्बन। कार्बन हमेशा प्रेजेंट रहेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो इसलिए हम जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड उसके सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can cause cancer as well as cure it depending upon its intensity and use? tobacco, alcohol, ionized radiation, ultraviolet rays। अब इसमें देखो, टोबैको क्या कैंसर ट्रीट करने में काम आता है? नहीं, ये कैंसर कॉज करता है। अल्कोहल, ये भी कैंसर कॉज करता है। आयनाइज्ड रेडिएशन और यूवी रेज। अब यूवी रेज सबको पता है कि ये कैंसर कॉज करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आयनाइज्ड रेडिएशन। आयनाइज्ड रेडिएशन जो है, अगर ज़्यादा अमाउंट में इसको एक्सपोज किया जाए किसी को, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है ये रेडिएशन एंड ऑल, तो इस वजह से वहाँ पे कैंसर कॉज हो सकता है। और वही जगह इसी रेडिएशन को केमोथेरेपी में यूज़ लिया जाता है, और कम अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, बिकॉज इसका जो फर्दर जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कीमो के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। The total volume of blood in a normal adult human being, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर्स, 3 to 4 लीटर्स, 8 to 10 लीटर्स, 10 to 12 लीटर्स। कितना ब्लड होता है इनमें से?
5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इतना ब्लड होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबॉर्न डिजीजेज, वाटरबॉर्न डिजीजेज, नन ऑफ द अबव। अब देखो, जो टाइफॉइड है और जो कॉलेरा है ये बहुत ही कॉमन डिजीजेज है। हम अक्सर देखते हैं ये किस वजह से होता है। ये हमेशा कंटामिनेटेड वाटर अगर जाता है बॉडी में समहाउ तो ये इस वजह से होता है, इसलिए वाटरबोर्न डिजीजेज होते हैं। जो कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरे करके एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी करके बैक्टीरिया होता है। ये सब वाटर इज द एजेंट जिसकी वजह से अगर वो कंटामिनेटेड रहेगा इन दोनों बैक्टीरिया से तो टाइफॉइड या कॉलेरा होता है। So the next question, energy is stored in liver and muscles in the form of, जो एनर्जी होता है हमारे बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? एक्चुअली तो क्वेश्चन ये पूछने जा रहा है जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग किससे मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है। तो अगर हमने एक्स्ट्रा कार्ब लिया है अपने अंदर और वो ग्लूकोज नहीं यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ जाता है? बॉडी में लीवर मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? वो स्टोर्ड रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब हमें हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तब ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन, लुवेनहुक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, है ना? तो ये तो नहीं होंगे। लैम्बल और टेमिन अगर नाम नहीं भी सुना हो, इतना कॉमन नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। लुवेनहुक अक्सर हम जब सेल की पढ़ाई करते हैं तो उसमें लुवेनहुक का नाम आता है। लुवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है बिकॉज ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। इस वजह से वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है और आंसर भी हमारा लुवेनहुक ही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज। देखो, जो अब डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली आपके एडेप्टेशन, कॉपरेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, इसमें से क्या होना चाहिए? डाइवर्सिटी एडेप्टेशन के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी आती है, कॉपरेशन में भी डाइवर्सिटी आती है, म्यूटेशन होने से भी डाइवर्सिटी आती है, पॉलीप्लॉइडी से भी आती है। पर इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है लार्ज स्केल डाइवर्सिटी वो किससे आती है? और वो जो लार्ज स्केल डाइवर्सिटी आती है वो कॉपरेशन से आती है। सो आवर आंसर विल बी बी, कॉपरेशन। What is vermiculture? Vermiculture क्या होता है? The science of raising worms, the science of studying animals, the science of studying fishes, the science of killing worms. वर्मीकल्चर, वर्मी कंपोस्ट बहुत कॉमन आजकल हो गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हमें पता है जब अगर हम वर्म्स को रियर करते हैं सो दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज वर्मीकल्चर। सो आंसर क्या हो जाएगा? रेजिंग वर्म, ऑप्शन ए। ठीक है। और साइंस ऑफ ये स्टडिंग एनिमल्स को जूलॉजी में पढ़ते हैं, किलिंग वर्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। सो you got the answer A. So here we are ending up with our slide today. Thank you so much. Please like and share the slides.